ہر مسلمان وائسرائے موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اسی قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانہ میں بلاد مغرب کے وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے، اسی زمانہ میں بلاد مشرق کے وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہتے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سر راجاؤں نے جزیرہ سرندیپ سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، اور حجاج بن یوسف ثقفی نے خلیفہ سے ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ کا یہ خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی تو اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناقشات تھے۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی، اور اسی امید پر انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر پڑتا تھا، اور سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا غیر ممکن تھا۔ بحرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے جدا کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس وقت تک بحرہ روم میں جہاز رانی نہ کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کرائے جائیں تاکہ بحرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کرانے شروع کر دیے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ مسلمان جہاز بنانا یا چلانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہ ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے، جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کے 15-20 روز کا سامان آسانی سے آ سکے۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھی۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دیا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کریں گے، مگر موسیٰ چپ تھے، اور اس لیے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازرک کی عشرت پرستانہ زندگی کے واقعات معلوم ہوئے تھے، وہ اس سے بہت ناخوش ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کو بدکاری کی سزا دیں۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے، گویا وہ نیکوکاری کے ٹھیکیدار تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا ان جیسی ہی نیک رہے، بدکاری اور بد امنی کا دنیا جہان میں نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلاً علی بن ربیع تمی، حیات بن تمیمی ابن عبداللہ، ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، امید ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ نے کہا، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا بھی شروع نہ کیا تھا کہ کونیٹ جولین اور اشبیبلیہ کا راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیک سلیک کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ ان کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں، کبھی کبھی وہ ہمارے چونچے بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ اڑ جاتی تھی۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں،
वो नहायत खूबसूरत और खुशनुमा थी। एक जगह जब हम पहुँचे तो हमारे सामने एक चौड़ा दरिया आ गया। इस दरिया पर एक ऊंचा पुल बंधा था जो नहायत शानदार, मजबूत और खूबसूरत था। इसके दरवाजे जिनसे दरिया बह रहा था मेहराबदार और ऊंचे ऊंचे थे। मैंने आज तक किसी पुल के इतने ऊंचे दरवाजे नहीं देखे। हमने पुल के ज़रिए दरिया को अबूर किया और एक खुशनुमा वादी में जा उतरे। इस वादी में बहुत से खंडर थे और इन खंडरों में एक पत्थर का नहायत ऊंचा बुत था, इतना ऊंचा कि इसके नीचे खड़े होने से इसका सर नज़र ना आता था। हम सब लोग इस बुत को देखकर हैरान हो रहे थे कि इसकी पुश्त की तरफ से चंद औरतें आईं। सब नहायत खूबसूरत थीं और रेशमी पोशाकें, नीज सोने के ऐसे जेवरात जिनमें जवाहरात जड़े हुए थे, पहने थी। लेकिन इनके दरमियान जो औरत थी वो इन सब में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबरू थी। नीज इसकी पोशाक भी इन सबसे ज़्यादा बेशकीमत और बड़कदार थी। इसके जेवरात आबदार मोतियों और जवाहरात के थे, मगर वो एक तोक पहने हुए थी जिसमें लाल और यकूत जड़े थे। इसकी चमक से इस औरत के रुखसार दमक रहे थे और इसका चेहरा चांद से ज़्यादा जगमगा रहा था। इस औरत ने मेरी तरफ कुछ इशारा किया, मैं इसके पीछे चल दिया। जब हम संगी बुत से ज़रा फासले पर पहुंच गए तो वो औरत और इसके साथ वालियां सब हंसी और मैं चौंक पड़ा। चौंकते ही मेरी आंख खुल गई। मूसा, राहब, कॉनेट, जूलियन नीज तमाम लोग खामोश बैठे हैरत भरी नज़रों से अब्दुल अजीज़ को देख और ख्वाब सुन रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मूसा ने कहा, अजीब ख्वाब देखा है तुमने। जूलियन, हाँ अजीब ख्वाब है, ज़रा एक बात तो बताइए। अब्दुल अजीज़, क्या? जूलियन, आप कभी उंदलस में गए हैं? अब्दुल अजीज़ ने कहा, कभी नहीं गया। मूसा ने कहा, आपने ये सवाल क्यों किया? जूलियन, इसलिए कि जो कुछ इन्होंने बयान किया है वो उंदलस ही की सरजमीन के मुतालिक है। मूसा, क्या वहाँ के पहाड़ और मैदान ज़्यादा सरसब्ज हैं? जूलियन ने कहा, जी हाँ, हकीकत में उंदलस बहिश्त का नमूना है। कुदरत ने दुनिया के तमाम हिस्सों में जो चीज़ें पैदा की हैं वो सब उंदलस को बख्श दी हैं। वो फलों की बहुतात और आसमान के साफ़ रहने के लिहाज से मुल्क शाम है। आबो हवा की उम्दगी के ख्याल से यमन या अरब का नखलिस्तान है। मेवों की बाकसरत पैदावार और ताजगी के एतबार से हजाज है। जरखेज़ी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू के अंदाज से हिंदुस्तान है। मूसा ने कहा, आपने तो इसकी बड़ी तारीफ़ कर डाली। जूलियन, वो मुल्क ही तारीफ़ के काबिल है, मगर आपके साहबजादा ने जो ख्वाब देखा है इसने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया है। मूसा ने कहा, क्यों? जूलियन, इसलिए कि उन्होंने कभी उंदलस नहीं देखा, मगर ख्वाब में उंदलस पहुंच गए। जिस बुत का उन्होंने जिक्र किया है वो मरेडा के खंडरों में नहायत मशहूर बुत है। इसका नाम ग्लेशिया है। दुनिया भर में इतना बड़ा और अच्छा बुत और कोई नहीं है। मूसा ने कहा, और वो औरत? जूलियन, जिस औरत को उन्होंने देखा है वो शाह राजरक की बीवी नाइला है। इसका तौक दुनिया भर में बेनज़ीर है और वो हसीन भी ऐसी है कि जैसा इन्होंने बयान किया है। सारे उंदलस में वो खुशनुमा तौक वाली हसीना के नाम से मशहूर है। मूसा, ताजुब है मेरे बेटे, तुम ख्वाब में उंदलस हो आए। अब्दुल अजीज़ ने कहा, क्या आप मुझे बेदारी में उंदलस जाने की इजाज़त ना देंगे? मूसा, नहीं, मैंने इस मुहिम के लिए एक और ही बहादुर को मुंतखब कर रखा है। अब्दुल अजीज़ ने मायूसी के अंदाज से दरियाफ्त किया, और वो कौन है? मूसा ने कहा, जब दरबार खिलाफत से इजाज़त आ जाएगी इस वक्त तुम्हें और सब मुसलमानों को मालूम हो जाएगा। इस वक्त एक खादम ने आकर कहा, हजूर कासद दमिश्क से वापस आ गया है। सब इस खबर को सुनकर खुश हो गए। मूसा ने जल्दी से कहा, इसे फ़ौरन बुलाओ। खादिम वापस चला गया और सब बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार करने लगे। जब कासिद के आने में ज़रा देर हुई तो इन लोगों में क्या सराइयाँ होने लगी। जूलियन ने कहा, क्या आपके ख्याल में आला हज़रत खलीफातुल मुस्लिमीन ने लश्कर कशी की इजाज़त दे दी होगी? मूसा, मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक मुहिम हिंदुस्तान पर भेजी जा रही है और वो अशद ज़रूरी है। जूलियन, क्यों? मूसा ने कहा, इसलिए कि सिंध के मगरूर व मुतकब्बिर राजा ने चंद मुसलमानों को कैद कर लिया है। इन्हें छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की ज़रूरत होगी।
जूलियन, आप मुसलमानों में बड़ा इत्तेफाक व इत्तेहाद है। मूसा ने कहा, क्यों ना हो, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। जब एक भाई पर मुसीबत आई या इससे तकलीफ़ पहुँचे तो क्या दूसरा भाई इससे मुतासिर ना होगा? और अगर मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ़ और परेशानी में देखता है तो इसकी मदद नहीं करता, तो इससे खुदा और खुदा का रसूल दोनों नाखुश हो जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की हर मुमकिन अमदाद करने पर मजबूर है, और इसी वजह से मुसलमानों में यगानियत और भाईचारा है। जूलियन ने कहा, ठीक फरमा रहे हैं आप। जो मोहब्बत, इखलास और प्यार मुसलमानों में है वो तमाम दुनिया की किसी कौम में नहीं है। इतने में कासिद अंदर आया। इसने बुलंद आवाज़ से सलाम किया। मूसा ने सलाम का जवाब देकर इसे बैठने का इशारा किया। वो एक तरफ बैठ गया। मूसा ने दरियाफ्त किया, कहो आला हज़रत खलीफातुल मुस्लिमीन तो बखैरियत हैं? कासद, जी हाँ, खुदा के फजलो करम से बखैरियत हैं। मूसा ने कहा, और अरकान हुकूमत व काबरीन मिल्लत? कासद, सब खैरियत से हैं और सब ने सलाम कहा है। मूसा ने कहा, और आम मुसलमान? कासद, वो भी अच्छी तरह से हैं, मगर अदना मुसलमान से लेकर आला तक, हत्ता कि खलीफातुल मुस्लिमीन भी इन मुसलमानों की वजह से, जिन्हें हिंदुस्तान के मगरूर राजा दाहर ने कैद कर लिया है, सख्त परेशान और बेकरार हैं, और सबकी निगाहें इस मुहिम पर लगी हुई हैं जो कि वहाँ भेजी जा रही है। मूसा, अच्छा, मेरी अर्ज़दाश्त का जवाब मिला? कासद, जी हाँ। मूसा, लाओ। कासिद ने खलीफा का मरासला निकाल कर पेश किया। मूसा ने अव्वल इसे चूमा और फिर खोल कर पढ़ा। लिखा था, मन जानिब वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफातुल मुस्लिमीन अज़ दमिश्क बजानिब मूसा बिन नसीर वाइसराय बिलाद मगरिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाद हम्दो सलात के कलमी है कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया से फासिक व फजूर, बदकारी और बदअमनी को दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। अगरचा हमें हिंद की मुहिम दरपेश है, मगर इस मुहिम की वजह से कॉर्नेट जूलियन की मदद से बाज नहीं रह सकते। वो मज़लूम है और मज़लूम की हिमायत करना मुसलमान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम इस मुहिम का कुली इख्तियार तुमको देते हैं। तुम नहायत होशियारी से इसे शुरू करो। बहादुर और तजर्बाकार लोगों को अंदलस भेजो और किसी ऐसे अफसर का इंतखाब करो जो इस मुहिम के लिए मुनासिब और मौजू हो।